السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ MM5 ٹی وی پہ. میرا نام فہد ہے. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ ہیں وہ ہے ڈاکٹر شہزاد قریشی. یہاں UK میں NHS میں ایز اے کنسلٹنٹ ہسٹوپیٹولوجسٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی بھی ایک طرح سے جو ہے نا ایک امپورٹنٹ پرومیننٹ فگر ہیں. فلانتھروپی کے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں انوالو رہتے ہیں، تو ایک بہت ہی پازیٹیو فگر ہیں. یہاں ہر دل عزیز پاکستانی برٹش کمیونٹی جو ہے اس میں، اور ڈفرینٹ کمیونٹیز کے اندر بھی جو ہے نا جانی مانی شخصیت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ دا شو ٹوڈے. Thank you very much, Fahad, for having me over and for the wonderful introduction also. My pleasure. Thank you for joining us. Doctor, quick introduction for those of you who don't know your journey. تھوڑا سا in a nutshell بتائیے گا کہ برطانیہ کیسے آنا ہوا، کیا آپ کا academic اور professional background ہے، اور کیا activities رہتی ہیں آج کل؟ جی میں I'm basically medical doctor، اور میں نے گریجویشن لاہور سے کی تھی way back in 85. پھر 87 میں انگلینڈ آ گیا، اور 87 سے 2000 تک I was in UK. I did my post graduation، اور اس کے بعد I got a consultant job in 1995. ہمارا ایک ایگزام ہوتا ہے FRC PATH، جو کہ ہمارا رائل کالج کا ایگزام ہے. تو I passed that in 95, became a consultant in 96. بس پھر 3-4 سال یہاں جاب کی ایز اے کنسلٹنٹ. تو اس کے بعد ایک پاکستان سے آفر آ گئی ایز اے پروفیسر ان اے ویری پریسٹیجیس میڈیکل کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے لاہور میں. تو بس وہ ڈیسیژن تو مشکل تھا، لیکن I took the decision, resigned from here, went back to پاکستان. پھر میں 20 سال تقریباً میں نے پاکستان میں جاب کی فرام 2000 to 2020 ایز اے پروفیسر وہاں میڈیکل کالج میں. ساتھ میں یہاں ویکیشنز میں آتا رہا انگلینڈ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنے. ساتھ لوکم ہماری ہوتی ہے وچ از ان جاب، آپ کی یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم اسائنمنٹ کر سکتے ہو. تو 20 سال ایسے کیا. اب میں ریٹائر ہوا تھا 2020 میں پاکستان سے، کیونکہ وہاں ایج ہے 60 پہ یو آر ریٹائر فرام دا. ایکچولی آئی واز ان گورنمنٹ جاب، پنجاب گورنمنٹ. سو میں ریٹائر ہوا 2020 میں. اس کے بعد آپشن تھی یا تو پاکستان میں کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج جوائن کروں، ساتھ میری اپنی وہاں پہ لیب ہے، لیبورٹری پرائیویٹ لیب ہے انڈس لیب کے نام سے، اور اس کو لک آفٹر کروں. اور یہاں پہ چوائس تھی کہ میں UK آ جاؤں. تو بس یہاں آیا تو یہاں اتنی شارٹیج ہے میری فیلڈ میں لوگوں کی کہ بڑی اچھی جاب آفر کی. تو اب میں 5 سال سے دوبارہ UK میں ہوں ایز اے کنسلٹنٹ ود NHS. انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اوبیسلی پاکستان سے بہت لوگ ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں امیگریٹ کر کے، ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اپنی you leave the life that you know very well behind، اور آپ ایک نئی زندگی میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ان سم ویز یہ ریورس 2-3 دفعہ کیا ہے کہ یعنی کہ آپ ایک دفعہ موو ہوئے، یہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو گئے، یہاں کے طور طریقے، پروفیشنلزم، وہ سارا کچھ، اس کے بعد آپ ریپ اپ کر کے دوبارہ. تو how would you describe that? Like did you face a lot of challenges? جو ریورس ٹرانزیشنز ہوتی ہیں یہ دونوں سائڈ کی. جی میں آپ کو اپنا ایکچولی I'll be very honest، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں پاکستان گیا. میری مین وجہ جانے کی یہ تھی کہ وہاں مجھے ایک پروفیسوریل جاب آفر ہوئی. اور ایکچولی ہماری فیلڈ میں میڈیسن میں آپ کی جو ریکگنیشن ہے نا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. باقی چیزیں منی وغیرہ دیز آر دا بائی پروڈکٹس. مین ہماری اٹریکشن ہوتی ہے ریکگنیشن ہونا. تو مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ظاہر ہے یو ہیو ہنڈریڈز آف ہسٹوپیتھولوجسٹ آف مائی آپ کہہ لو کیلیبر یا مائی ٹریننگ. جو پاکستان مجھے پتا تھا کہ آئی ول بی دا ون آف ویری فیو، اور میں بڑی جلدی مجھے ریکگنیشن ملے گی وہاں پہ. اور پلس ظاہر ہے آپ ایک ٹیچنگ پروفیشن میں جب ہوتے ہو تو آپ ٹیچ کرتے ہو انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹس کو، تو ایک آپ کی قسم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹورڈز یور مدر لینڈ، ہوم لینڈ. اور اس میں پھر میں نے بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا وہاں پہ، جو کہ اب بھی پروفیسوریل لیول تک پہنچ گئے ہیں پاکستان میں. تو یہ میرا مین موٹو تھا کہ ایک تو ریکگنیشن اور دوسرا کنٹریبیوشن ٹورڈز مائی مدر لینڈ یعنی پاکستان. سو ان کے لیے میں گیا. اور مجھے اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہوئی کہ تھینک فلی آئی بلانگ ٹو، آپ کہہ لو وہاں کے جو ویل سیٹل لوگ ہیں، تو مجھے اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. جو غالباً جو لوگ واپس آ جاتے ہیں ان کی ہو سکتا ہے روٹس اتنی نہ ہو وہاں پہ، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن میں نے تو بہت اچھا وہاں پہ 20 سال گزارے یہاں سے جانے کے بعد، اور اب واپس آیا ہوں. تو مجھے اتنی ٹرانزیشن فیل نہیں ہوئی.
जो कि बाकी लोगों को हो सकती है। और मतलब फ्रैंकली वहाँ कॉन्टेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, जो मैंने पूरा अपना, आपकी पोस्टिंग, आपकी प्रमोशंस, उनके लिए यू हैव टू हैव कॉन्टेक्ट्स इन पाकिस्तान। सो थैंकफुली मेरे थे, तो मेरा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, मुझे इतना चैलेंज फील नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑब्वियसली सिंस द लास्ट फ्यू डेकेड्स आपने दोनों हेल्थ सेक्टर्स को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत जी जी। अहम किरदार होता है, साथ में ऑब्वियसली सरकारी अस्पतालों लेबोरेटरीज का भी एक रोल होता है, यहाँ पे एनएचएस का काफी है। तो इन दोनों जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनमें क्या मतलब आपने चेंजेस देखी हैं पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और यहाँ पे एनएचएस का भी हम देखते हैं, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज इन द न्यूज कि क्या चैलेंजेस हैं। जी जी। नहीं, बहुत फर्क है पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम या हेल्थ सेक्टर में और इंग्लैंड में बहुत फर्क है। एक पहले मेजर फर्क तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना 2 tier सिस्टम है, कि एक जनरल प्रैक्टिस है जो आपके जीपीज होते हैं यहाँ पे, और फिर कंसल्टेंट बेस्ड सर्विस होती है। और आप पहले हमेशा आपकी जो कैचमेंट एरिया का यूजुअली जीपी होता है, आप जीपी सर्जरी में जाते हो, वो आपको देखता है, फिर अगर वो मुनासिब समझता है तो रेफर करता है स्पेशलिस्ट को, जो भी रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो उसके पास। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वन टीयर सिस्टम ही है, कि एवरीबडी रशेस टू अ कंसल्टेंट स्ट्रेट अवे ना। वहां कोई जनरल प्रैक्टिस को अभी तक इतना वो स्टेटस हासिल नहीं था जो यहाँ पे है। यहाँ पे आप जनरल प्रैक्टिस हो, कंसल्टेंट हो, आपका एक स्टेटस है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जनरल प्रैक्टिस को जरा एक डिग्री नीचे समझा जाता था डॉक्टर्स कम्युनिटी में और पब्लिक में भी। तो लोग रश करते हैं कंसल्टेंट को, उसके वजह से वो ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं, ओवर वर्कड, और वो फिर उसकी वजह से गलतियां भी होती हैं वहां पे, मिस्टेक्स भी होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है यहाँ वहां पे। और दूसरा ये है कि वहाँ जाहिर है इट्स इट्स रिलेटिवली पुअर कंट्री, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, तो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो है वो मेनली प्राइवेट ही है, अगर आपने क्वालिटी हेल्थ केयर लेनी है। गवर्नमेंट के भी पब्लिक सेक्टर के हैं, बहुत हॉस्पिटल हैं, जैसे मेयो हॉस्पिटल 2000 बेडेड है, इस तरह और बहुत है। लेकिन वहां पे एक तो जाहिर है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि दे कांट केटर फॉर एवरीवन। सो वो क्वालिटी केयर जो आपको वहाँ प्राइवेट सेक्टर में मिलती है पाकिस्तान में, वो आपको पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलती, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ मैं अभी भी कहूंगा गो के एनएचएस भी थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड है, लेकिन स्टिल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एनएचएस। तो ये 2 मेजर फर्क मैंने देखे हैं पाकिस्तान के और इंग्लैंड के हेल्थ सिस्टम में। बिल्कुल। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं कम्युनिटी की। यहाँ पे आप ऑब्वियसली काफी इन्वॉल्व हैं डिफरेंट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के अंदर, फिलैंथ्रोपी होगी या सोशल एंटरटेनमेंट साइड भी होगी। तो कैसा पाया आपने यहाँ बरतानिया की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी एक अहम किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की मीशत के अंदर भी, लेकिन बाहर रह के जी हाँ। परदेश में रह के भी अपनी जो सकाफत है, अपने जो तहजीब व तमद्दुन है उसको जो उजागर रखना, उसके अंदर भी एक किरदार होता है। तो आपकी कैसे इन्वॉल्वमेंट रही, और आप हमेशा से काफी एक्टिव थे कि आपने रिसेंट ईयर्स में जो है इसको डिस्कवर किया? चलिए, इसको मैं थोड़ा सा पहले फिलोसॉफिकल वे में आपको बताऊंगा। तो मैंने, यानी तकरीबन आप कह लो 35 साल, 40 साल के करीब मेडिकल कैरियर है मेरा, जिसमें मैंने फिजिकल डिजीजेस को एड्रेस किया है मेनली। आई हैव बीन ट्रीटिंग फिजिकल इलनेसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल जो ह्यूमैनिटी है वो ज्यादा मेटाफिजिकल डिजीजेस जो है ना उससे ज्यादा सफर कर रही है एज कंपेयर टू फिजिकल। इससे मेरी मुराद ये जो आपकी बात है कम्युनिटी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि जब आप एक मरीज को ट्रीट करते हो तो आप उसकी अक्सर डिजीज को ट्रीट करते हो। जब वही मरीज वापस अपने सर्कमस्टांसेस में जाता है, अपनी कम्युनिटी में जाता है, और उसके ऊपर वही सारे जो कम्युनिटी का आप कह लो इनजस्टिस है सोशल नॉर्म्स में और ये वो, और मतलब प्लस उसको वो वहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलती, आ, तो वो फिर डिजीज उसकी वापस आ जाती है बहुत से केसेस में। तो अब ये हमारा आप कह लो होना चाहिए प्रिंसिपल के, बजाय डिजीज को ट्रीट करने के आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। और पेशेंट से मुराद है कि उसका एनवायरनमेंट जो है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, उसको भी आपने केटर करना है, उसको भी एड्रेस करना है। तो यही सोच के मैं फिलंथ्रोपिक काम में आया।
اور وہ میں اب آپ کو نیکسٹ آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ زیادہ وہ میرا کام ایکچولی پاکستان میں ہے، فلانتھروپک ورک جو ہے گو میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرتا ہوں، اور جو جب وہ یو کے آتے ہیں تو یہاں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں بیسکلی. تو یہ وجہ تھی میرا شفٹ کرنے کا فوکس فرام پیور میڈیکل ڈاکٹر ٹو اے فلانتھروپسٹ اور کمیونٹی اور چیریٹی ورکر. ہاں پلیز اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مطلب کون سے مین پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آج کل آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں پاکستان میں، کن ایریاز کے اندر کن اسپیسیفک کمیونٹیز کو سرو کر رہے ہیں وہ پروجیکٹس؟ جی ہاں، کیونکہ یہاں تو میں زیادہ این ایچ ایس کے ساتھ ہی ہوں، تو میں کچھ کچھ سائٹ کے ایسے پروجیکٹس ہوتے تھے، کووڈ کے دنوں میں تھا کوئی پروجیکٹ سے اس ٹائپ کے، تو ان میں یہاں بھی تھوڑا بہت کمیونٹی کا میں نے کام کیا ہے. لیکن جو بیسکلی میں نے بہت سی این جی اوز نے مجھے اپروچ کیا جب ان کو پتا چلا کہ میری یہاں نیٹ ورکنگ بھی ہے، ڈاکٹرز کمیونٹی میں بھی ہے، اور ڈاکٹرز کے علاوہ بھی جو یہاں کے آپ کہہ لو بزنس کمیونٹی ہے، جرنلسٹ ہیں، باقی سب کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا بہت سی این جی اوز نے کہ بھئی ہم وی آر کمنگ ٹو یو کے فار فنڈ ریزنگ اویئرنیس، تو آپ ہمیں ہیلپ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن میرا ایک بڑا اصول تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جب یہاں کا جو ڈونر ہے وہ جب ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کو 100% شیورٹی ہونی چاہیے کہ اس کا ایک ایک پینی جو ہے اٹ از ٹریسیبل، اور وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پلفریج نہیں ہے. تو میں نے پھر آپ کہہ لو 20 سے زیادہ این جی اوز نے مجھے اپروچ کیا ہوگا، ان میں سے میں نے پھر 5 سلیکٹ کی، جن میں آپ کہہ لو یہ خیر یہ جو 4-5 ہیں یہ تو وہ ہیں جن کو میں انڈائریکٹلی کر رہا ہوں فیسیلیٹیٹ ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں ایز این ایڈوائزر، ان کا فنڈ ریزنگ میں ان کی ہیلپ کرنا، جب وہ یہاں آئے تو ان کا پورا لک آفٹر. اور 2 ایسی این جی اوز ہیں جس میں ایک کا میں یو کے ڈائریکٹر ہوں، اور ایک میری اپنی این جی او ہے پاکستان میں جس کو میں یہاں سے بیٹھ کے رن کر رہا ہوں. تو وہ جو تھیں 4-5 ان میں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. اخوت ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کی، آپ سب لوگ جانتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. امجد ثاقب گو کہ ہیلتھ میں ان کا بھی اتنا نہیں ہے، ایجوکیشن میں اور مائکرو فائنینسنگ میں ہے، لیکن بہت بہت زبردست کام ہے ان کا. وہ میں نے جا کے ان کا وزٹ کیا، ان کی یونیورسٹی سارا. پھر ایک وہاں پہ ہے چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے، پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. وہ وہاں پہ بچوں کے لیے کارڈک ہاسپٹل بنا رہی ہیں پہلا کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز کے، اس میں فرحان صاحب ہیں، ان کی بھی بہت زبردست کام ہے. وہ میں نے پروجیکٹ دیکھا جا کے، میرا بیٹا بھی انوالو ہے اس کی مارکیٹنگ میں، تو وہ بھی اب فنکشنل ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ لو انڈس ہے جو باری صاحب کا ہے، اس کا بھی نیٹ ورک پوری آپ کہہ لو پاکستان میں ہے. وہ بھی میں نے وزٹ کیا جا کے اور باری صاحب کو یہاں فیسیلیٹیٹ کیا ان کے سارے فنڈ ریزر میں. تو یہ تو کچھ ہے جن میں کوئی آفس ہولڈ نہیں کرتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم ہیلپ کروں. جو ایک پروجیکٹ جس کا میں یو کے ڈائریکٹر ہوں، وہ ہمارا اب کارڈک ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں گجرانوالہ کے قریب، جس کا نام ہے سرور شاہدہ کارڈک ہاسپٹل. اور یہ 200 بیڈڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہوگا، جو کہ اگلے سال سے اس کا آؤٹ ڈور انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. اس کو ہم نے یہاں چیریٹی کمیشن سے رجسٹر کروا لیا ہے. ابھی چھوٹے لیول پہ میں نے 3 فنڈ ریزر کیے تھے لنڈن، برمنگھم، مانچسٹر میں، لیکن ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑے ایونٹ کا، کیونکہ بہت ایکسپینسو ہے، آپ کو پتہ ہے کارڈک ہارٹ کا جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. تو وہ ہے. اور جو فائنلی میرا جو اپنا میری بہن کے ساتھ پروجیکٹ ہے جس کو ہم تھوڑا اور لیٹر اور ڈسکس کریں گے، وہ سڈ آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہے، این جی او وچ از سسٹینیبل انٹرونشنل ڈرائیو. اور اس میں ہم جو ریڈ لائٹ ایریا ہے لاہور میں جس کو آپ ہیرا منڈی کہتے ہو، وہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ اور گروم کر رہے ہیں سو دیٹ دے کین ہیو اے ڈیسنٹ لیونگ، اے ڈیسنٹ جاب، اور یوزفل سٹیزن بنے پاکستان کے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کتنا امپورٹنٹ، آپ نے obviously پہلے بھی اس کا احاطہ کیا کہ obviously جو ایک انسان کی اپنی ویل بینگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک سینس آف پرپز بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی، گیونگ بیک ٹو دا انڈر پریولیج یا لیس فارچونیٹ، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے آپ کی فلاسفی یہی رہی ہے کہ ود ٹائم ان لائف آپ نے جب اپنی پرسنل پروفیشنل اچیومنٹس کی تو اس کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ یو نیڈ ٹو spend more time on projects that are about others.
जी हाँ, एक तो ये भी फैक्टर आप ठीक कह रही हैं, जब आप यहाँ पे आते हो, यंग होते हो, आपका ज्यादा टाइम आपके लाइवलीहुड में ही आप उसी में गुजरता है कि हाउ टू मेक योर बोथ हैंड्स, Yeah. आप ज़ाहिर जॉब करते हो, बिजी होते हो, और उसके बाद आपके पास टाइम होता है, आप या तो रिटायरमेंट या सेमी रिटायरमेंट एज में, कि आप दूसरे जो आपके पैशन है, जो आप करना चाहते थे हमेशा जिंदगी में, लेकिन टाइम की वजह से आप कर नहीं सके, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल। वो आप फिर करते हो जब आप रिलेटिवली थोड़े फ्री होते हो। लेकिन इसके साथ साथ में अगेन थोड़ा सा, मैं हमेशा फिलोसॉफिकल अप्रोच भी होती है मेरी। या अगर आप देखो कि दुनिया में दो टाइप के इंसान होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने लिए जिंदा रहते हैं, ठीक है, और ये मेजोरिटी होती है, तकरीबन आप कह लो 95% लोग ऐसे हैं जो उनकी एक स्टीरियोटाइप लाइफ है। या वो गलत नहीं है, मैं कहता, वो भी ठीक है, उनका एक अपना लाइफ का पैटर्न है, सुबह उठे, जॉब पे गए, घर आए, खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, बाल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एक छोटा सोशल सर्कल होता है उनका फ्रेंड्स का, अगले दिन वही साइकिल, फिर सेम साइकिल। तो मेजोरिटी दुनिया में वो लोग हैं। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपनी बजाय दूसरों के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, या वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे फायदा हो हर लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिटी, देन योर सिटी, मे बी फॉर योर कंट्री और मे बी फॉर द वर्ल्ड। या आप जिस जिस स्केल पे ऊपर जाते जाओगे, आपका वो मिशन, गोल बड़ा होता जाएगा। अब एक तीसरी किस्म भी होती है, मैं वही बताना चाह रहा था कि शायद मैं अपने आप को वो तीसरी किस्म में प्लेस करता हूं, जो कि अभी तक डिस्क्राइब तो नहीं थी, ये मेरा अपना है, कि जो लोग दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों लाइफ्स को, कि वो चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी फैमिली लाइफ भी हो, हमारी अच्छी एक स्टडी जॉब भी हो, प्लस इंजॉय भी करें वो जिंदगी को, यानी कि या जो आपके यूजुअल वे ऑफ एंजॉयमेंट है ना, मतलब इवेंट्स पे जाना, म्यूजिक सुनना, इवन डांस करना, वट, तो आप ये भी करो, इसके साथ साथ आप ऐसा आपका गोल हो, मिशन हो लाइफ का, या कि आप उसको भी परसू करो, और फिलेंथ्रोपिक वर्क जो है, आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, आप लोगों के लिए भी करो, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है, ये मैं एक्चुअली लोगों को बताता भी हूँ, टीच भी करता हूँ। या इसकी मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, कि पिछले साल चांद रात पे मैंने कोई फंक्शन था, उस पे मैंने भी डांस किया ना उठ के, तो वो वायरल हो गई वीडियो, लोगों मतलब सोशल मीडिया पे, तो मुझे बड़े मैसेजेस आए। खैर ज्यादा ने अप्रिशिएट ही किया कि भाई बड़ा अच्छा, आपकी मूव या बड़ी अच्छी थी, ये वो वटेवर। या लेकिन कुछ ऐसे भी आए कि उन्होंने कहा, जी आप डॉक्टर हो तो बिहेव लाइक डॉक्टर्स, आप उठ के आपने नाचना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो एक कोने में जाके बैठ जाए और बोर हो, एक इवेंट है, चांद रात है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी करेगा। तो ये मैं एग्जांपल मैंने इसलिए दी है कि आप अगर लाइफ को बैलेंस करोगे ना, तो आपकी या टाइम मैनेजमेंट ऐसी हो सकती है कि आप खुद भी इंजॉय करो, फैमिली को भी टाइम दो पूरा, उसके साथ साथ फिलंथ्रोपिक वर्क भी करो, बिल्कुल। तो इस और आई थिंक दिस इसके इज पॉसिबल। इसके ऊपर एक कोट भी है कि यू कैन नॉट वाटर अ प्लांट विद एन एम्प्टी पॉट। तो कोई भी या पब्लिक सर्विस की एग्जैक्टली, जो एक्टिविटीज होती हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप खुद खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप फुलफिल्ड जी हैं, तो हाँ, आपके जो सर्विस यूजर्स हैं, वो वो उनको आपकी बिल्कुल, वही रिफ्लेक्शन होगी, बजाय इसके कि आप मिजरेबल हों और अपने आप को दबा के आप जी अपने हाँ, बस मजबूरी में जी बैठे हाँ, हैं। बिल्कुल। इसमें खास तौर पे जो फैमिली सपोर्ट है आपकी, या जो इमीडिएट आपकी फैमिली है ना, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, या उनकी सपोर्ट से आपको जो एक किस्म का आपको फ्यूल मिलता है ना, और ज्यादा आप इसको एक्टिवली करते हो, वो बहुत जरूरी है। या जिन लोगों की फैमिली लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती या ट्रबल्ड होती है, उनके लिए फिलंथ्रॉप बाकी काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यंग लोगों के लिए ऑब्वियसली आप जैसा जब स्कूल में होते हैं, जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन ऑन योर टाइम इन स्कूल यूनिवर्सिटी, आपके दिमाग में जो एक करियर ट्रेजेक्टरी थी या जो ड्रीम्स थी, हैज योर लाइफ टर्न्ड आउट टू बी सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट यू हैड एनविज्ड, या बहुत डिफरेंट था जब आप स्कूल में थे? हर इंसान के ख्वाब होते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपकी क्या रिफ्लेक्शन है, और यंग लोगों को क्या आपका मैसेज होगा हु आर थिंकिंग अबाउट करियर्स, हु आर थिंकिंग अबाउट सेटिंग देमसेल्व्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि एप्टीट्यूड भी देखना चाहिए। जिस तरह हमारे जमाने में बाय डिफॉल्ट होता था सब कुछ, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड कोई नहीं था देखता, आपके अगर
नंबर्स हाईएस्ट आ गए हैं मैक्सिमम, तो आप ऑब्वियसली मेडिसिन में जाओगे, उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर CSS IT, ये मतलब लॉ भी ऊपर था थोड़ा सा। तो एक सेट सा पैटर्न था कि आपके मार्क्स ग्रेड्स पे डिपेंड करता था कि आपका कैरियर क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। अब आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन। सबसे जरूरी चीज है जी पैशन। आपको जिस काम का पैशन है, अगर आप वो करोगे तो हमेशा आप एक्सेल करोगे। अगर आप वो नहीं करोगे तो यू रिमेन एन एवरेज। ठीक है ना। उसकी मैं छोटी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरा अपना नेफ्यू है, मेरी बहन का बेटा है। वो अच्छा भला लम्स में पढ़ रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, लेकिन वो एक आर्टिस्टिक माइंड का हम्म। लड़का था। हम्म। उसने उसको मूवी मेकिंग का शौक था, तो वो बड़ी फैमिली की विल के अगेंस्ट, हमारे तो फैमिली में कोई मूवी फिल्म इंडस्ट्री में था ही नहीं, वो चला गया सैन फ्रांसिस्को। वहां से उसने एकेडमी ऑफ आर्ट, जहाँ से हॉलीवुड के डायरेक्टर्स बनते हैं, वहां से उसने फिल्म मेकिंग सीखी। फिर वापस आके उसने पहले वार बनाई, फिर मौला जट बनाई। बिलाल अशारी उसका नाम है। उसने मौला जट जब बनाई तो उसने 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान का। ही इज माशाल्लाह वेरी यंग। तो या अगर आप बच्चों को इनकरेज करो ना, कैरियर वो लें जिसमें उनका पैशन हो, या इंटरेस्ट हो आप, and then they will excel. Otherwise, they will remain average in any field. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं, ऑब्वियसली आप दर्स व तदरीस के साथ मुंसलिक हैं, साथ तहकीक में भी आपका इंटरेस्ट है। थोड़ा प्रिसीजन मेडिसिन, ऑब्वियसली जिनोमिक्स के ऊपर काफी बात होती है, बहुत सारे ममालिक जो हैं एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम जिनोमिक प्रोग्राम्स के अंदर, प्रिसीजन मेडिसिन के जी अंदर, जी कि आगे कैसे आने वाले दिनों में जो मेडिसिन होगी वो डिजाइन की जाएगी लोगों की पर्टिकुलर जीन्स के बेस के ऊपर, या उनकी हेरिडिटी के जो चैलेंजेस हैं या डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर। तो उसके बारे में आपकी पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पर्सनली काफी ज्यादा फैसिनेट करती हैं प्रिसीजन मेडिसिन को लेके, या AI या मेडिसिन का जो फ्यूचर आगे आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में नजर आएगा, उसको लेके? जी जी बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब जो है ना, आई एम अ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। हम्म। तो जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है वो कैंसर को डायग्नोज करता है। हमारा हम्म। जो मेन, आप कह लो मेन या रोल है, वो हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं। प्लस हम ऑटोप्सी पोस्टमार्टम सर्विस भी हम ही लोग देते हैं। तो इसमें क्योंकि आप कैंसर को डायग्नोज करते हो, तो उसमें आप रिसर्च में भी होते हो, कैंसर रिसर्च में भी। या तो मैंने भी, क्योंकि मेरा ये मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कैंसर रिसर्च, तो मैं भी आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन इट। तो बल्कि अभी मैंने रिसेंटली इसी पे काफी टॉक्स दी हैं। अभी हमारा लंदन में ही कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, वहाँ मेरा मेन लेक्चर था इसी के ऊपर, जेनोमिक्स इन मेडिसिन, या जो या प्रिसीजन या मेडिसिन है। या इसको या हम टारगेटेड टारगेटेड थेरेपी भी कहते हैं, काफी नाम है बिल्कुल। इसके। तो वो, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं अब ये कहूंगा कि फर्क लोगों को पता होना चाहिए हेरिडिटरी और जेनेटिक का। हम्म। ये बहुत जरूरी है। ऑल हेरिडिटरी डिजीज आर जेनेटिक, बट नॉट ऑल जेनेटिक डिजीज आर हेरिडिटरी। हम जिसकी बात करें, सिर्फ 2 to 3% जो कैंसर है ना, वो हेरिडिटरी होता है। वो फैमिली में रन करता है। जिस तरह कुछ ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ ओवेरियन कैंसर है जो फैमिली में रन करती है, लेकिन वो सिर्फ 3% होते हैं जो हेरिडिटरी हैं। जो बाकी 97% है वो जेनेटिक है, लेकिन हेरिडिटरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जीन्स है ना, जो DNA होता है, जो सेल के अंदर DNA है, जिस जो जीन्स बनाता है DNA, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। तो उसके लिए हम उसको जेनेटिक डिजीजेस का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये जेनेटिक म्यूटेशन एक्वायर्ड होती है आपकी लाइफ में। कोई भी ऐसा एजेंट है, कोई केमिकल्स हैं, कोई रेडिएशन है, कोई वायरसेस हैं, कोई पेस्टिसाइड्स हैं, कोई पोल्यूशन, वटेवर, या स्मोकिंग है, तो ये सब चीजें आपको जेनेटिक लेवल पे डैमेज करती हैं। या और क्योंकि वो जेनेटिक लेवल पे डैमेज होता है, इसलिए हम अब कैंसर को भी जेनेटिक डिजीज कहते हैं। और फिर जाहिर है अब जो नई ट्रीटमेंट आ रही हैं उसमें हमने इस चीज को एड्रेस किया है कि वो जीन्स जो कि म्यूटेट हो गई हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंडिविजुअल में मुख्तलिफ डिजीज म्यूटेट होती हैं एंड दे कॉज कैंसर। तो हम पहले उस इंडिविजुअल का, जो पेशेंट का जेनेटिक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये जीन इसमें म्यूटेट हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो फिर हम उसको कोई ड्रग्स देते हैं। तो इसलिए हम उसको पर्सनलाइज थेरेपी कहते हैं। या ठीक है। तो ये जो पर्सनलाइज थेरेपी है, एक्चुअली दिस इज using your genetic information in healthcare.
ठीक है ना, अगर आप वन लाइन में इसका जवाब yeah, मांगेंगे yeah, तो द यूज ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर इज कॉल्ड प्रिसिजन मेडिसिन। yeah. बिल्कुल। और अच्छा, आपने कैंसर का जिक्र किया, ऑब्वियसली इसमें मेरी नजर से भी कई ऐसी कंपनीज और ऐसे इनिशिएटिव्स गुजरे हैं कि वो एआई को यूज करके जो वो दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेडिशनल पैथोलॉजी और लैब की रिपोर्ट्स में वो कैंसर जो है वो मिस हो रहा है, लेकिन वो एआई की यूज से जो है देर एबल टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स मोर इफेक्टिवली। एंड ऑब्वियसली एआई, इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है कि हर एरिया मेडिसिन का जो है ना वो इफेक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर एथिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली, बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में तो देयर इज द बक स्टॉप्स एट समवन हु इज मेकिंग दैट डिसीजन। लेकिन अगर आप एआई को इस तरह रोल आउट करेंगे तो उससे काफी ज्यादा और चैलेंज होंगे। तो पर्सनली आपकी क्या इंटरेक्शन रही है एआई के साथ, और हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग द वे वी लुक एट हेल्थ केयर? जी बिल्कुल, आई डोंट डिनाई दैट, ठीक है ना, एआई का देयर इज अ डेफिनेट रोल ऑफ एआई in medicine, in every field of medicine, including histopathology. लेकिन there are limitations also. I always say there is always a man behind the gun. ठीक है ना, जितना मर्जी आप एआई को समझो कि ये फुली एक ऑटोमेटेड सर्विस है, इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक देर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑलवेज इन्वॉल्व इन एनी गैजेट्स। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें एक ह्यूमन फैक्टर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब आप देखना, ये क्लेम करते हैं कि हम 96% एक्यूरेसी से कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं अगर आप उसको फीड कर दो सारा डाटा जो है। Yeah, लेकिन आप ये सोचो कि जो रिमेनिंग 4% है उनमें से एक भी गलत डायग्नोज होता है, yeah, किसी की टांग काट दी जाती है, किसी की ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, तो आप फिर सू किसको करोगे? ठीक yeah, है ना, अगर उसमें कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है। सो इसके लिए भी लॉज बनने बहुत जरूरी है पहले। अभी तो आप सू करते हो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को कि भाई मेरा गलत कैंसर डायग्नोज हो गया, मेरा ये हो गया, सर्जरी हो गई, गलत सर्जरी हो गई। अब अगर एआई जनरेटेड रिपोर्ट होगी फुली, जिसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो whom are you going to sue? Who yeah, is going to be the responsible for yeah, that wrong decision, that one wrong decision, yeah, yeah, तो yeah, ये मैं कहता हूँ, मैं क्योंकि आई एम हिस्टोरियन ऑल्सो, मैं थोड़ी हिस्ट्री को भी ले आता हूँ। ये 15th सेंचुरी में नोस्ट्राडामस था, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिशियन ऑल्सो। सो ही उसकी 997 प्रोफेसीज हैं कि क्या होगा फ्यूचर में। तो उसने कहा था कि वन डे मशीन विल टेक ओवर। ठीक है, तो आज उसकी प्रोफेसी बिल्कुल ठीक है, द yeah, मशीन्स आर टेकिंग ओवर। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द गन। yeah, आपको ह्यूमन फैक्टर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको yeah. कम कर सकते हो। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन में ये 2026 के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? कौन से ऐसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप जिनके ऊपर काम करेंगे, या पर्सनल आपकी क्या कोई क्या कहते हैं, कोई टू डू लिस्ट है या एजेंडाज हैं जो 2026 में आप कंप्लीट करना चाहेंगे? एक तो मेरे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही है ऑब्वियसली, ये जो आप जेनोमिक्स की बात कर रहे हैं या कि आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दीज ड्रग्स, जो कि हम लेट स्टेज जो कैंसर है, बहुत एडवांस या कैंसर, उसमें हम दे के, जो अभी भी हम दे रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, क्वालिटी लाइफ दे लोगों को। तो एक तो ये मैं इसमें इन्वॉल्व भी हूँ, एंड आई विल कीप ऑन गिविंग टॉक लेक्चर्स सब कुछ, कि ये मेरा एक जो पैशन है अपना मेडिसिन से रिलेटेड, जिनोमिक्स खास तौर पे, या दिस आई वुड डेफिनेटली बी कंटिन्यू। सेकंड एक्साइटिंग न्यूज जो है वो डिजिटल पैथोलॉजी है। या डिजिटल पैथोलॉजी का मतलब ये है कि मैं कहीं भी ऑफ साइट रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, जिस तरह या आप रेडियोलॉजी की करते हो या कि आपका एमआरआई स्कैन यहाँ होता है, रेडियोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया बैठा होता है और या रियल टाइम में या रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो आप हमारी हिस्टोपैथोलॉजी में हमारी जो वो स्लाइड होती है, वो डिजिटल इमेजेस हमारे पास कहीं भी आ सकते हैं। अब अगर मुझे इंग्लैंड रहने का वैसे शौक ना हो, तो मैं पाकिस्तान में अपने आराम से लाउंज में बैठ के भी एनएचएस की रिपोर्टिंग कर सकता या हूँ, एंड दे कैन या पे मी हियर इन माय अकाउंट। सो दैट इज पॉसिबल नाउ। या तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज है कि आपका ऑन साइट होना जरूरी नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी में, आप ऑफ साइट भी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और फाइनली जो मेरा, अब इसके अलावा आपने जो जिस तरह जिक्र किया, मेरा जो रोल है एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, एज अ कम्युनिटी वर्कर, उसको मैं मजीद करना चाहूंगा। अभी हम
ट्रॉमा सेंटर बना रही हैं, वही जो हमारा रेड लाइट एरिया का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन बच्चों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत होता है। तो हमने एक वहाँ हवेली खरीदी है राइट इनसाइड रेड लाइट एरिया, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट लोग होंगे जो इन बच्चों को नॉर्मल करेंगे साइकोलॉजिकली भी ऑल्सो। तो ये हमारा एक मेन मेरा है। और प्लस आई एम इनटू पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकिंग, सो उसके लिए मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। जब भी पाकिस्तान मेरा अगर विजिट 10 दिन का होता है तो उसमें मेरे तकरीबन 12 टॉक्स होती हैं इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस पे, जो ग्रूमिंग सेंटर्स हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के। तो इसके थ्रू मैं अपने मैसेज को सोचता हूँ कि ज्यादा इजीली स्प्रेड कर सकता हूँ टू द वाइडर ऑडियंस। तो ये मेरे कुछ हैं जो कि नेक्स्ट ईयर एंड द इयर्स कमिंग जितने भी हैं इनमें इंशाल्लाह मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा इन चीजों पे। ब्रिलियंट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज आपने देखा डॉक्टर शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, साथ दर्स व तदरीस के साथ भी मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट साथ काम कर रहे हैं, यहाँ बरतानिया में भी NHS के साथ जो है ना इन्वॉल्व हैं। इनसे हमने जाना इनकी कहानी के बारे में और देखा कि कैसे इंसान के मुख्तलिफ जो है वो जाविये होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लेकिन साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कैसे कम्युनिटी को गिव बैक करते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, लेस फॉर्चुनेट होते हैं, अपने वक्त से, अपनी नॉलेज से, अपनी रिसोर्सेज से कैसे हम जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी जिंदगी की बेहतरी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ इक़दाम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज़ाविया देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।